Good morning, 11th class. So, we are on chapter number 5 of geography, that is natural vegetation. Now, when we are talking about this term natural vegetation, we have already come across this term many times in our junior classes. And in our ninth class, we even studied it in comparatively more detail as compared to the earlier classes. So now in 11th class, since we have the base of the ninth class, so we will be now studying it in little more detail. Okay. So now let us start. Now, obviously, when we start with any chapter, if we need to talk about its introduction, you all must have seen if you have gone to certain garden park, yeah, if you have got the chance to go to any like forest kind of area, you must have noticed कि कितने अलग अलग टाइप के vegetations होते हैं, है ना? So, if you had a chance of visiting more of these places, you will find that there is a difference between the type of you can say vegetation that is present in the wild areas, or you can say in the forest, etc. Whereas there is difference if we talk about the plants that grow in a garden or under somebody's supervision, मतलब जब human beings उसको grow करते हैं, चाहे cultivation हो या ऐसी कोई भी चीज हो, तो what is natural vegetation is basically different from, you can say, the one that we have planted, है ना? That means simple terms में अगर हम बोले तो it is natural vegetation is different from the planted vegetation. So as the term itself suggests कि जो planted vegetation है वो वाली vegetation होती है जो basically सुपरविजन या तो ह्यूमन सुपरविजन के थ्रू या फिर ह्यूमन बीइंग्स ने ही उसको ग्रो किया है, तो वो तो हो जाएगा अपना planted vegetation. What will it be? It will be planted vegetation, whereas natural vegetation वो होगी जो naturally grow करती है, like our forest areas and these kind of things. Okay, so I think we already know about this difference, just we have just mentioned about it. Now along with this we also need to understand कि जो natural vegetation है, it basically refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time, so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible. मतलब अगर हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो नेचुरल वेजिटेशन कब हम बोलेंगे, वो वाली प्लांट कम्युनिटी जो जिसको एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया है, यानी ह्यूमन बीइंग्स ने या किसी ने भी उसको समवेयर डिस्टर्ब नहीं किया, नेचुरली इट इज ग्रोइंग, जो वहाँ की इंडिविजुअल स्पीशीज है वो अपने आप ही एडजस्ट कर रही है टू द सिचुएशन, टू द एनवायरमेंट, टू द क्लाइमेट, टू द सॉइल, एंड उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट करके एडजस्ट करके दे आर ग्रोइंग। ठीक है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन हो जाएगी एज सिंपल एज दैट। ओके, आई सपोज यू मस्ट हैव बेसिकली थोड़ा बहुत तो कुछ याद होगा ही नाइन्थ क्लास का। सो बेसिक जो हमारा है नेचुरल वेजिटेशन, हमने इन आर नाइन्थ क्लास वी हैव द डेफिनेशन दैट इट ग्रोज विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उसी को हमने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है कि इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, एंड जो वहाँ पे स्पीशीज होती है वो उधर की क्लाइमेट और उधर की सॉइल कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट होके और उसके बाद ही ग्रो करती है। ओके, so that is all about what exactly is natural vegetation. Now if we talk about India, again we know कि India जो है is a country which is very very, you can say, rich in terms of, जब हम बात करते हैं in terms of its natural vegetation, as in our classes like ninth class we have already studied कि we have great variety of species, and India is basically a kind of country is which witnesses actually diversity of plants and animals as well, है ना? So if you remember, we studied in our ninth class that around 47,000 plant species are there in India, and it occupies around 10th place in the world and fourth in Asia if we talk in terms of the plant diversity.
Then if we talk about the बेसिकली फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी भी अपने इंडिया में बहुत वैरायटी है. वी हैव 89,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश in fresh as well as marine waters. So basically this data we have already studied in our ninth class, that we actually have lot and lots of variety, and we also hold a nice position if we compare ourselves to the world कि कितना भाई अपनी position है in terms of plant species. As we saw कि around 10th place है, 47,000 plant species है. Fourth, we are in Asia. Then we have flowering, non-flowering plants, fishes, animals. Fishes में भी fresh water अपने उसमें भी rich है, marine water में भी rich है. So we do witness variety of things. और vegetation की, where right now when we are talking about vegetation, we know that we also have variety of vegetations available in India. इसका भी हमें रीजन भी पता है, बिकॉज वी आर अ कंट्री विच इज हैविंग वे एकदम वैरायटी ऑफ क्लाइमेट एज वेल. सिचुएशंस भी अलग है इन टर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, अलग है, रिलीफ अलग है, स्लोप अलग है, सॉइल टाइप अलग है. तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पे नेचुरल वेजिटेशन भी वी हैव वैरायटी ऑफ natural vegetation as well. So India is basically a land of great variety of natural vegetation. जैसे सपोजेटली अगर हम देखें जो हिमालयन हाइट्स है, दे आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन. अगर हम वेस्टर्न घाट्स देखें, अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखें, तो यहाँ पे अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं. डेल्टाइक रीजन्स में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी होते हैं, मैंग्रोव्स भी होते हैं. डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज राजस्थान जैसे हैं, वहाँ पे अपने कैक्टस टाइप के प्लांट्स होते हैं. एंड ऑल्सो अपने वैरायटी ऑफ बुशेस होते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन होती है. सो ये जितने भी हम देखते हैं, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ different natural vegetation that can be seen in India, and that is what we'll be doing in detail in this chapter. But we already know about the, you can say, the important natural vegetation and their location as well. जैसे कि we know कि राजस्थान के सेमी एरिड और इन एरियाज में ही अपने ये थॉर्नी वेजिटेशन होंगी, बुशेस होंगी. हिमालयन हाइट्स पे जनरली टेम्परेट वेजिटेशन होता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑन वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स. और डेल्टाइक रीजन में अपने को पता है मैंग्रोव्स होते हैं, समवेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एज वेल. सो क्लियरली अपने को पता है दैट आवर कंट्री इज अ कंट्री विच इज ब्लेस्ड विथ वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ओके, सो वी हैव ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. एंड एज आई सेड, इसके रीजंस हैं कि क्यों है इतनी अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन. बिकॉज we have variation in climate, we have variation in soil, and we have variation in kind of landforms, the kind of soil. So because we are having variations in many of the natural aspects as well, that is why हमारी natural vegetation भी जो है वो अलग होती है. And mainly इसमें somewhere responsible is climate and soil. Rest other things are also there, as we know, regarding the altitude of the area and the relief features and the other natural factors as well. Okay, so we know that the type of forest that we have already again seen in our previous classes. So just let us quickly go through them and then we'll study them in detail. So अगर हम basically divide करें the type of forest that we can see in India, it is tropical evergreen or semi evergreen forest. Okay, then we have tropical deciduous forest, and after that we have tropical thorny forest, then montane forest, then we have littoral or swamp forest. अब again you will see that the fifth categorization जो है हमारी, it is something which you may be thinking कि ये थोड़ी नई चीज है, ये हमने जूनियर क्लासेस में नहीं की है. But there is not much of difference when we will study. You will understand कि जो हमने पढ़े हैं उन्हीं से कुछ related है, but obviously because now we are in 11th class तो हम थोड़े specific हो जाते हैं. So we will be able to study this categorization as well.
सो हम जब भी इनकी बात करेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर चैप्टर. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दीज टॉपिक्स इन डिटेल, आई जस्ट वांट टू मेक few things clear so that whenever we talk about these terms, you should know the meaning of these terms. Okay. So, what do and why am I telling this? Because these terms will be coming now and then in your geography, because we have taken geography as a main subject, so there are few terms about which we should be very clear about, है ना. तो सबसे पहली चीज है, जब भी टर्म ट्रॉपिकल आएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है. वी नो दैट on our earth we have drawn certain imaginary lines, latitudes and longitudes. Okay, so latitudes means the ones running from north to sorry longitudes means the lines running from north to south, whereas the latitudes means from east to west, है ना, और वेस्ट टू ईस्ट. अब ये वाली जो लाइंस है लैटिट्यूड्स, वी नो वी हैव लाइक दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, देन वी हैव 90 लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ एंड 90 लैटिट्यूड्स टू द साउथ. और इसमें हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ लैटिट्यूड्स मार्क कर रखी है, सो दैट वी कैन स्टडी द अर्थ बेटर on based on certain similar characteristics, that is tropic of Cancer and tropic of Capricorn, है ना. And then here we have Arctic Circle, then this is our Antarctic Circle. Okay, so just again focus, the one that passes through center of India is equator, then 223 and a half degree, this is somewhat you can say यहाँ पे exactly this is 23 and a half. Okay, and then we have towards this area we have 66 and a half degrees north, this is our Arctic Circle. Then we have tropic of Capricorn, that is 23 and a half degree south. Then we have Antarctic, which is 66 and a half degree south. Okay, so with this you just need to understand that ये जो एरिया है कौन सा वाला, जो हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, जब भी हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस पोर्शन that is between the two tropics. Okay, so between the two tropics, that is between tropic of Cancer and tropic of Capricorn, जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है. नाउ इफ यू रिमेंबर इन योर आई सपोज 6th क्लास, then this area was termed as torrid zone. Okay, जब हमने टॉरिड जोन की बात की थी तो हमने ये किया था कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है, बिकॉज सनलाइट डायरेक्ट आती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, दिस एरिया रिसीव्स लॉट ऑफ सनलाइट, द टेम्परेचर इज हाई एंड रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी हाई, है ना. अब हम जब भी बोलेंगे ना ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट, यू शुड अंडरस्टैंड कि इट इज बेसिकली बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स. ओके, दिस इज 23 and a half degree north and this is 23 and a half degree south. Okay, the degrees here they are showing a little variant to be more specific, but you just now need to understand 66 and a half degree, 23 and a half, 23 and a half here and 66 and a half. But the thing is that कि यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ S आएगा अपना और ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ओके, तो इससे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी ट्रॉपिकल टर्म आएगा, यू शुड रिमेंबर कि स्पेसिफिक इस टाइप का अपना क्या आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा. बट देन अगेन आई विल वांट टू रिपीट वन मोर थिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह पे इतने पूरे एरिया में एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर होगा. नो, वी नो दैट इंडिया बेसिकली लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर समवेयर है, तो इंडिया का जो कुछ पोर्शन है
वो हमारा इट इवन लाइज इन द ट्रॉपिकल एरिया, और इसके ऊपर का जो एरिया होता है ना, दिस वन, दैट इज, जैसे दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक के बीच में होता है टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेट। ओके, एंड अगर हम इसी को बोले कि नीचे भी जो हमारा आर्कटिक सर्कल, सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो और इस एरिया को कभी कभी सब ट्रॉपिकल जैसे भी बोल देते हैं। ओके, सो बेसिकली ये वाला एरिया जो है जहाँ पे अपने इंडिया है, सो इससे अपने को क्या समझ आता है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हियर वन थिंग, दैट आवर कंट्री इंडिया इज this because in this map actually India lies to the other side, but अगर हम suppose इसको prime meridian मान लें, अगर इसको prime meridian, then we will notice that India, though they have shown this one as the prime meridian, इसलिए इंडिया जो है वो इधर ग्लोब के पीछे वाली साइड पे है, बट अगर हम इसको सेंटर मान ले तो हमारा इंडिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट पासेस ऑलमोस्ट थ्रू सेंटर ऑफ इंडिया, so when it passes almost through center of India, then obviously we need to understand कि ऐसा नहीं है कि उसमें आधे एरिया में तो एकदम ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और ऊपर अचानक से चेंज हो गया, इट इज नॉट द केस, बिकॉज एक तो नेचर जो है वो भाई स्ट्रेट डिमार्केटिंग लाइन नहीं ड्रॉ करती, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें चेंज होती है, और एक ही चीज पे नहीं डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। ओके, दैट इज व्हाई आवर कंट्री, because has variety of so many natural phenomena and so many different natural characters, environmental conditions, that is why we also experience, somewhere you can notice so many natural vegetations। ठीक है, so now whenever we talk about tropical, just understand वैसा kind of क्लाइमेट। ओके, और उसी तरीके से जब भी हम डेसिड्यूअस बोलेंगे ना, प्लीज अंडरस्टैंड डेसिड्यूअस जो है इट इज जनरली इक्वेटेड और समवेयर रिलेटेड टू मॉनसून। ठीक है, तो जब हम डेसिड्यूअस बोलेंगे यू कैन इक्वेट इट टू द monsoon, and whenever we talk about tropical you know about which area we are talking about। ठीक है, कभी कभी sometimes ये जो tropical वाला एरिया, इसको या ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसको इक्वेटोरियल भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं इक्वेटोरियल, भाई मेन इक्वेटर के आसपास होता है इसीलिए। ठीक है, so now we move on to, when we are clear with our base, we now move on to the specific kind of natural vegetations, जिसमें से सबसे पहले है अपना ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, now when we start talking about these forests, first of all these forests are found in the western slopes of Western Ghats, because we know that the western slope of the Western Ghats generally receive lot of rainfall, that is why this area has tropical evergreen kind of vegetation। एंड इसके साथ साथ और कौन कौन से एरिया है इंडिया के जहां पे ये वाली वेजिटेशन होती है अपनी, दैट इज अगेन व्हेन वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिकली रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये कौन सी एरिया हो सकती है, वी नो कि इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है दैट इज वन ऑफ द प्लेस विच रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, नॉट ओनली इन इंडिया बट अगर हम वर्ल्ड के डेटा के अकॉर्डिंगली कंपेयर करें तो। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहां पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एंड देन अलोंग विद दैट वी इवन सी दैट there are few more areas where we find this kind of vegetation as well, वो है हमारे अंडमान एंड Nicobar Islands, and these Andaman and Nicobar Islands also have the vegetation which is the tropical evergreen kind of vegetation। ठीक है, नाउ ये तो देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये मिलता है, तो अपने बेसिकली पता है, एक तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, hills of northeastern regions and Andaman and Nicobar Islands। ठीक है, then now if we want to understand about the characteristic of this kind of natural vegetation, मतलब कैसे कंडीशन में ये ग्रो करते हैं, तो सबसे पहले तो दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। ठीक है,
वार्म है पर ह्यूमिड भी है। एंड देन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, ऑन एन एवरेज एनुअल टेम्परेचर होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ दैट मीन्स दो चीजें हमें याद रखनी है यहाँ पे कि प्रेसिपिटेशन जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो भी हम बोलेंगे अराउंड अबव 22 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसी जगह पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है दे कैन एक्चुअली सर्वाइव वेरी इजीली। Then tropical evergreen forest जो है they are well stratified with layers closer to the ground and are covered with shrubs and creepers with short structured trees followed by tall variety of trees. अब देखो what are they saying that tropical evergreen जो है ना stratified somewhere layer होते हैं। layer किस टाइप के layer, नीचे सबसे पहले तो जो ग्राउंड है उसके पास भी कौन कौन से छोटे छोटे वेजिटेशन होती है, जैसे श्रब्स की हो जाएगी, क्रीपर्स की हो जाएगी, उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज होते हैं और फिर टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज। नाउ यू अंडरस्टैंड लेयर्स में है, मतलब ग्राउंड से शुरू होते हैं, ग्राउंड पे भी ग्राउंड के एकदम पास भी जो प्लांट्स है वो उगे हुए होते हैं, फिर उसके और थोड़ी ऊपर हाइट तक देखो तो भी ग्रो हुए होते हैं, और फिर शॉर्ट ट्रीज हो जाते हैं और फिर टॉल ट्रीज होते हैं, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड लेयर्स में होते हैं एंड दैट इज व्हाई दीज फॉरेस्ट आर रियली रियली डेंस, ओके। So we have understood one more characteristic of this type of vegetation. Now we move on to other characteristic of these forests. सबसे पहली चीज जो again we have started in 9th class as well, so you may be having certain idea कि यहाँ के trees जो है वो बहुत बहुत लंबे भी होते हैं, they are really tall and even attain great heights up to 60 meters or even above, ठीक है। Then one more important thing that these forest basically यहाँ पे जो trees होते हैं they do not have a definite time to shed their leaves or flowering or fruitation. फ्रूटेशन का मतलब क्या है, बेसिकली प्रोड्यूस फ्रूट और मतलब फ्रूट टू बेयर फ्रूट। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस कि एक डेफिनेट टाइम नहीं है जब सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो अपने पत्ते शेड कर देंगे। जनरली जो ट्रीज वगैरह होते हैं उनके एक शेडिंग टाइम पीरियड होता है, जैसे कभी जैसे हम बोलते हैं पतझड़ या ऐसे वाला जो टाइम पीरियड। बट यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना तो सबका सेम टाइम पीरियड नहीं होता है शेडिंग लीव्स का, अलग अलग टाइम पे होता है। और मतलब कोई वैरायटी ऑफ ट्रीज का फ्लावरिंग सीजन कोई और होता है, किसी और में और किसी टाइम पे फ्रूट आते हैं। तो इससे क्या होता है, इट सीम्स दैट दिस फॉरेस्ट इज ग्रीन फॉरएवर। इट सीम्स कि हर टाइम ही पूरे साल में ये जो फॉरेस्ट है ये ग्रीन अपेयर होते हैं, बिकॉज सारे के सारे एक टाइम पे शेड नहीं करते हैं लीव्स and all have different flowering period, all have the different fruitation period। तो अलग अलग इतना ज़्यादा अगर हम देखेंगे कि डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फ्लावरिंग फ्रूएशन और ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमेशा ये क्या अपीयर होता है, इट अपीयर्स ग्रीन। शेडिंग सीजन भी हर प्लांट का सेम नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन, क्योंकि दे अपीयर एज एवरग्रीन। ऐसे कभी नहीं लगता कि सारा का सारा फॉरेस्ट जो है कभी बीच में सारे पत्ते झड़ गए हैं, ऐसे नहीं। फ्लावरिंग भी हो रही है, कहीं पे फ्रूट्स उग रहे हैं, फ्रूटेशन फ्रूएशन हो रहा है, एंड all of these things are going on, that is why this is called evergreen forest। and these forest then अगर हम इनकी ये देख ले स्पेसिफिक कौन कौन से यहाँ पे ट्रीज होते हैं, तो these include rosewood, mahogany, एनी और एबनी, ओके। नाउ इसके बाद अगर हम आ जाए, दिस वाज अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब हमने इस टॉपिक में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इंक्लूड किया। नाउ व्हाट आर दीज सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट? नाउ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है दे आर फाउंड इन कंपैरेटिवली लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन्स। इन्हीं रीजन्स में कंपैरेटिवली थोड़ा जहाँ पे लेस रेनी पार्ट्स होता है वहां पे ये वाले
अपने को फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं. नाउ सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. एक्चुअली में व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन विच विल बी डेसिडियस फॉरेस्ट, वी विल नोटिस कि डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, जनरली वो वाले होते हैं मतलब उनमें सिचुएशन क्या चाहिए होती है कि 200 और अराउंड 70 या 100 सेंटीमीटर तक की जो रेनफॉल है वो जिन एरियाज में होती है उन एरियाज में डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं. दैट मीन्स जो एक हम बोलेंगे ट्रांजिशन काइंड ऑफ एरिया है जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट कि एग्जैक्टली टोटली एवरग्रीन फॉरेस्ट भी नहीं है, उससे थोड़ी सी कम रेन रिसीव हो रही है यहाँ पे. पर जो डेसिडुअस में देयर आर टू पार्ट्स, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस. तो मॉइस्ट डेसिडुअस के भी कुछ ट्रीज अवेलेबल हैं. मतलब डेसिडुअस के वो वाले जो ज्यादा रेन रिसीव करते हैं उनके हिसाब से, और एवरग्रीन के जो कम रेनफॉल रिसीव करते हैं उनका जो मिक्सचर होता है that is called semi evergreen forest. Somewhere we can say transition between the evergreen and the deciduous forest. So semi evergreen forests are found in the comparatively less rainy parts of these areas, and they are mixture of some evergreen forest. यहाँ पे कुछ evergreen भी होते हैं और कुछ moist deciduous trees भी होते हैं, as I just said. Now the undergrowing climbers provide an evergreen character to these forests. So why do we call it as semi evergreen? क्योंकि यहाँ पे जो somewhere near the you can say ground जो undergrowing climbers होते हैं नीचे की साइड, बेसिकली जो because of these climbers again in forest को भी क्या मिलता है, evergreen character जैसा मिल जाता है. They seem as evergreen. That is why they are called semi evergreen forest. इसकी जो मेन स्पीशीज है ट्रीज की, दैट इज व्हाइट सिदार, हॉलॉक एंड पेल. ठीक है. So this is basically about our tropical evergreen and semi-evergreen forest. But we will not wind up this topic with this only characterization. Now these forests are really, you can say, very important if we talk in terms of their economic value. ठीक है, economic value के हिसाब से these forests are very very good. और ये इतने वैल्यूएबल हैं एंड हमें पता है कि we human beings, whenever we find out that something is really valuable, we start exploiting it to the level without thinking about what will be the consequences. So we are the people basically who have exploited it to a lot extent, but इसमें somewhere we were not the people totally who misused it in a bigger way. कैसे? ये जो फॉरेस्ट है ये अब जो है हमारा स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया है, क्योंकि जो ब्रिटिश है ना, जब ब्रिटिश आए थे दे एक्चुअली सॉ कि इन ट्रीज की बहुत इकोनॉमिक वैल्यू है, तो उन्होंने लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी इन फॉरेस्ट की. ठीक है. और टोटली इन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया. क्या किया उन्होंने, जैसे जो ओक फॉरेस्ट थे गढ़वाल और कुमाऊं एरिया में, उनको रिप्लेस किससे कर दिया, पाइन से. नाउ इफ यू रिमेम्बर इन आवर 9th class there was one chapter in history, I think forest and something related to that, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे they needed lot of timber, तो उन्होंने इंडिया के फॉरेस्ट को फिर जर्मन एक्सपर्ट को बुला के एंड देन दे स्टार्टेड डिवाइडिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ऐसे करके कैटेगराइजेशन कर ली थी एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू की थी जर्मन एक्सपर्ट को बुला के. और फिर उन्होंने क्या किया था कि एक ही सर्टन टाइप के ट्रीज उगाने लग गए थे. तो जो ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं वर रिप्लेस्ड बाय pine because they needed it to lay the railway lines. If you remember उसमें हमने देखा था स्लीपर्स रखते हैं. स्लीपर्स क्या होते हैं, जो ट्रेन की ट्रैक्स होती है उसके बीच में जो वुडन ब्लॉक्स जैसे लगाते हैं, जो
वो उनको बोलते हैं स्लीपर्स के लिए उनको बहुत ज्यादा क्या चाहिए थी, वुड चाहिए थे, और वो स्पेसिफिकली पाइन के चाहिए थे। तो उन्होंने जो ओक फॉरेस्ट थे गढ़वाल और कुमाऊं को वहाँ कुमाऊं एरिया के, वो वहां से हटा के वहां पे पाइन, जिनको चिर्स भी बोलते हैं, वो ग्रो करने शुरू कर दिए। ठीक है। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब उनको लगा कि इंडिया की लैंड तो सही है, फर्टाइल है, तो उन्होंने इस पे उनको क्लियर करके वहां पे टी, रबर, कॉफी, इन सब का प्लांटेशन भी शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने देखा कि अब बिकॉज सो मच ऑफ टिम्बर वाज अवेलेबल टू देम एंड दैट टू समवेयर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और दे वर टोटली ट्राइंग टू यूटिलाइज इट। ओके। अब क्या हुआ कि एज इट एक्ट्स, अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए भी स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि वुड जो है मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग एंड देन इट ऑल्सो हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, हीट को समवेयर अपने थ्रू ऐसे पास नहीं होने देता। सो इट इज अ गुड इंसुलेटर, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज एक्चुअली एन इंसुलेटर ऑफ हीट। इसीलिए द ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। एंड उसके बाद बेसिकली जो इनिशियली जो फॉरेस्ट का यूज सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता था, अब उसको कमर्शियल यूज कर लिया गया। दैट इज इंडियंस जो थे, मतलब बेसिकली जो ट्राइबल्स वगैरह रहते थे, उन्होंने क्या, वो उनके लिए तो एक तरीके से हैबिटेट और इस टाइप का ही था, एंड समवेयर जरूर यूज करते थे फॉरेस्ट वो लोग, बट नॉट इन दैट अमाउंट। पर ब्रिटिशर्स ने तो उसको इतना ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन उसको फाइनली प्रोटेक्शनल यूज से चेंज होके कमर्शियल यूज के लिए किया, तो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई थी, and lot of problems were there and people even protested against that. But here just we need to understand that these kind of forests are really important if we talk in terms of their economic value, the quality of wood that they provide, the timber, that is really good. Okay. So with this, we wind up today's class. I suppose everything is clear. If you have any doubt relating to the topic, you can just come back with your problems and your problems will be solved. And in our next class, we'll be dealing with the other kind of vegetations. That is basically other kind of forest. Okay. So this is it for today. Meet you all in the next class.